Good morning, all. In last lecture, we'll see the first. We have seen in the last lecture what we have seen. First, we have seen what is the civil engineering. That part we have seen. After that, we have seen that what is mean by the civil engineering and what is the scope of civil engineering. That part we have seen in the last lecture. Okay. So, what is the civil engineering? Civil engineering is the professional engineering branch that deals with the analysis, design, construction, and maintenance of the infrastructural analysis, design, construction, and maintenance of infrastructural facilities such as building, bridges, dams, and the roads. Means civil engineer. The civil engineering is a professional engineering that deals with the analysis of any structure, design of any structure, and the constructions and the maintenance of any structure as far as the infrastructural facilities of the different buildings as the bridges, dams, and the roads that we have seen. Next is the what is the scope of civil engineering. Civil engineering scope, that is the civil first we'll see the what is the civil engineering is the oldest branch that already we have seen in the last lecture, and why it is known as the mother of all engineering. Why? That because of the civil engineering is deals with the design, construction, and maintenance of the structure as they are related with the earth and the water, and civil engineering is the mother of all the engineering branches. Next is the scope of civil engineering that we have seen. Civil engineering deals with the opportunities in the government as well as the private sectors in the abroad as well as in our India also. Second thing is that civil engineering is now the roads constructions as well as the our infrastructural development is goes on increases, so that there are the number of vacancies are into the government as well as the private sectors for the civil engineers. That is the scope of civil engineer. Next, we'll see these disciplines of the civil engineering. That is our today's fresh point. That is the disciplines of civil engineering. What are the disciplines of civil engineering? Discipline is nothing but a branches of civil engineering. The first we read this. What are the branches of the civil engineering? That is the architectural and town planning. Architectural and town planning. Second is the building materials. Third one is the construction technology. Fourth one is the environmental engineering. Fifth one is the geotechnical engineering. Next one is the hydraulics, water resource, and the irrigation engineering, remote sensing and GIS. Then structural engineering. Next one is the surveying, and the last one is the transportation engineering. These are the basic branches of the civil engineering. We'll see in detail that all the branches of the civil engineering. For that, you write these all the disciplines within 2 minutes in your notebook. Then we'll move towards the disciplines of civil engineering in detail. Write down these. I will wait for 2 minutes. Disciplines of civil engineering. Below this, you write as a civil engineering. Below this, write down one architectural and town planning. Architectural and town planning. Second, you write building materials. Building materials. Third one, you write construction technology. Construction technology. Fourth one, you write environmental engineering. Environmental engineering. Next one, you write geotechnical engineering. Geotechnical engineering. Below this, write down hydraulics, water resource, and irrigation engineering. Below this, remote sensing and GIS. Remote sensing and GIS. Below this, structural engineering. Structural engineering.
Below this, surveying, surveying, and last point, transportation engineering. Okay, these are the disciplines of civil engineering, means the domains of the civil engineering. We'll see one by one these all the domains of the civil engineering or the disciplines of the civil engineering. First is the architectural and the town planning. बघा in detail मध्ये मी आता small concept I will discuss here about this each and every discipline. Architectural and the town planning, इसमें हम क्या करते हैं आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग में, जो हमारा टाउन रहता है तो टाउन का हम क्या करते हैं आर्किटेक्चरल प्लानिंग करते हैं। तो कैसा करने का आर्किटेक्चरल प्लानिंग, अभी हमारा होम है, हम होम का प्लान बना रहे हैं तो हम प्लान कैसा बनाते हैं अपने हिसाब से बनाते हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है, तो किचन कहाँ चाहिए, नहीं तो बेडरूम किधर चाहिए, रोड साइड किधर है, ये सब हम ध्यान में रख के क्या करते हैं हमारा बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं। वैसा ही हम टाउन का प्लानिंग भी करते हैं, उसको ही बोला जाता है आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग मतलब उधर रेसिडेंशियल एरिया कहाँ होगा, कमर्शियल एरिया कहाँ होगा, हॉस्पिटल्स कहाँ होंगे होंगे स्कूल कहाँ होंगे, वो जो है उसका जो प्लानिंग हम करते हैं उस वो प्लानिंग को हम बोलते हैं टाउन प्लानिंग। एंड आर्किटेक्चरल इज नथिंग बट उसको हमें ब्यूटी बनाना है, जो हमारा टाउन दिखना चाहिए वो कैसा दिखना चाहिए, ब्यूटी दिखना चाहिए। इफ अभी टाउन में बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग के सर्विसेज रहते हैं वैसे ही टाउन के सर्विसेज भी रहती है। उधर रोड रहता है, दैट इज द रोड ट्रांसपोर्टेशन रहता है। उधर बिल्डिंग के बिल्डिंग सभी बिल्डिंग का अगेन वहाँ स्कूल्स है, अगेन हॉस्पिटल्स है, वो सभी का जो ड्रेनेज जो वेस्ट वाटर रहता है तो वेस्ट वाटर का भी लाइन्स हम रहते हैं टाउन में, तो उसका सभी का प्लानिंग करना चाहिए। और वो सब प्लानिंग करके जो हमारा टाउन है वो हमारा टाउन कैसा दिखना चाहिए, ब्यूटी दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि ये टाउन बहुत अच्छा प्लानिंग किया है, तो उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग। समझ आया क्या? देखो टाउन प्लानिंग मतलब जो हमारे टाउन में जो भी सर्विसेज है, जो भी है बिल्डिंग है तो उसके उधर टाइप है, बिल्डिंग के टाइप में उधर स्कूल बिल्डिंग आता है, अगेन हॉस्पिटल आता है, दैट आर द कमर्शियल बिल्डिंग आता है, कहीं तो बैंक्स आते हैं, अगेन उधर देखा तो रोड है, अगेन देयर ड्रेनेज लाइन्स है। तर सभी का जो प्लानिंग रहता है इन डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन ये स्मॉल में आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्ट कि आपको जो भी है वो सभी टाउन का क्या करना है, अच्छे से प्लानिंग करना है, और वो टाउन हमें कैसे दिखना है, ब्यूटी टाउन दिखना है। इसीलिए इसको बोला जाता है आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग। ये जो सिलेबस है इसमें से आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग का सिर्फ कंसेप्ट दिया है, बट फॉर यूर सिविल इंजीनियरिंग जो थर्ड ईयर लास्ट ईयर में है तो वो पूरा एक इसमें से सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग का। सेकंड जो वो है, सेकंड जो डिसिप्लिन है तो बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल का हम क्या करेंगे, इसमें से पूरा स्टडी होता है। बिल्डिंग मटेरियल मतलब कौन से भी बिल्डिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, जहाँ भी वो सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, टिम्बर्स लगते हैं, स्टील लगता है, तो वो सभी का स्टडी हम इसमें से करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। तो कौन से टाइप का मटेरियल कौन से बिल्डिंग में यूज करना चाहिए, वहाँ भी लो क्वांटिटी का और मीडियम क्वांटिटी का और गुड मटेरियल और ऐसा रहता है कम, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। वेरी नाइस मटेरियल और द वेरी लो मटेरियल और द बैड मटेरियल्स। बट कौन सा टाइप का मटेरियल हमने कहाँ यूज करना है, और ये बिल्डिंग का क्वांटिटी और क्वालिटी ये सभी पर वो क्या करता है प्लानिंग पर, और तो कौन से टाइप के मटेरियल इजीली अवेलेबल है वो जो साइट है उसके नज़दीक। तो इसमें से हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन दिस विल चूज द बिल्डिंग मटेरियल्स एंड विच बिल्डिंग मटेरियल्स आर बेनिफिशियल फॉर दैट बिल्डिंग। if there is a multi-story building, then we have to go for the whatever the materials which having the good quality, such a types of the material we have to use. And what are the materials will be required, जे काय असेल त्या ठिकाणी, ज्या सिमेंट असेल, sand, aggregate, if water is there, that water should be a clean water, purified water should be there. If wastewater if we use into the construction, then there will be a some of the lacuna will be occur into the construction. And so that for that purpose we have to go for the building materials with respect to their properties, that property should be good. Okay, and such a materials we will use into the any type of the building.
Again, coming towards the third type, that is the construction technology. Construction technology में मतलब क्या आता है? In this construction technology, different types of the construction technologies है. Now there are the different types of the equipments come. जो manual work रहता है, हम अभी construction कम कर रहे हैं तो क्या करते हैं? वो हम कर रहे हैं काम, तो अभी excavation करना है, तो excavation करने के लिए वहाँ कितने बहुत ज़्यादा लोग लगेंगे, लेकिन ये हम उधर bulldozer यूज किया या तो वहाँ JCB यूज किया, तो वो जो काम है तो वो within a short period that काम that work will be finished, so that such a construction technology should be there. That's why that discipline is named as a construction technology. समजलं का बघा? construction technology मतलब in the construction technology there are the various techniques which are advanced technique that will be helpful to finish the work within a short period. That is nothing but a construction technology. त्या ठिकाणी JCB असेल, बुलडोजर असेल, परत तुम्ही बघितलं असेल की मिक्सर असतो आपला, कॉन्क्रीट मिक्सर. एखादा कॉन्क्रीटचा प्लांट आहे, त्या ठिकाणी सिमेंट, सँड, ॲग्रीगेट, वॉटर दॅट ऑल आर मिक्स्ड विथ इच अदर, अँड फ्रॉम दॅट concrete is prepared, but site is at a longer distance. तर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, that machine or that equipment is a mixer that is used to transport the concrete from one place to the another place. That is also one of the construction technology. And for such types of the construction technologies are here, which are useful to do work fast, and that is nothing but a construction techniques. Next one is the environmental engineering. तर environmental engineering मध्ये काय बघितलं होतं आपण? environmental engineering त्यामध्ये काय येणार आहे तुमचं, विच एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग त्या ठिकाणी तुमचं येणार आहे वेस्ट. इफ देर आर दी टू पार्ट्स आहेत त्यामध्ये. वन इज द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर वेस्ट वॉटर असेल किंवा वेस्ट वॉटरला आपल्याला काय करायचं आहे, देर आर दी डिफरंट प्रोसेसेस, त्या प्रोसेसेस करून हाऊ टू प्युरिफाय द वॉटर, दॅट ट्रीटमेंट्स आर देअर. अगेन देअर इज अ एअर पोल्युशन, अगेन देअर आर दी नॉईज पोल्युशन. दॅट आर दी conceptual study about the environmental engineering that will be come under this. So that name implies as the environmental engineering related to the wastewater as well as related to the purifier water, how to make conversion of this wastewater into purified water. Again, second is that related to the environment, carbon emission related study, carbon dioxide related study. Again, third one is the related to the air pollution. Again, there will be a noise pollution. Because of noise pollution and air pollution, how environment is affected, that study is deals with the environmental engineering. अगेन कमिंग टूवर्ड्स दिस एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. तर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या आता है, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आता है जो हमारी जो बिल्डिंग्स रहते हैं, तो उसका बिल्डिंग किस पर रेस्ट रहता है, तो अर्थ पर रेस्ट रहता है. तो कौन सा पार्ट हमारे बिल्डिंग में जाता है, तो फाउंडेशन का पार्ट. फाउंडेशन हमारा पूरा कहाँ पर रेस्ट होता है, तो अर्थ पर रहता है. तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल. मीन्स जो कोई सॉइल पैरामीटर्स रहते हैं, तो सॉइल पैरामीटर का स्टडी इसमें रहता है. दॅट इज द जियो टेक्निकल इंजिनिअरिंग. इफ सॉइल पैरामीटर्स आपण जेव्हा फाउंडेशन बघतो, ॲट द टाइम ऑफ द फाउंडेशन, whenever we are excavating the foundation layer, त्यावेळेला काय होणार आहे, ॲट द टाइम ऑफ द फाउंडेशन, इफ हार्ड स्ट्राटा इज कम ओव्हर देअर, देन जे काय फाउंडेशनची डेप्थ असणार आहे, दॅट फाउंडेशन डेप्थ इज व्हेरी लेस. बट इफ देर इज अ हार्ड स्ट्राटा इज नॉट देअर, देन देर इज अ that depth of the foundation is goes on increases, and at that condition we can use the pile foundation. Means in the geotechnical engineering there is soil parameters, based on the soil parameters our foundation is raised. Which type of foundation, त्या ठिकाणी दोन टाईपचे फाउंडेशन असतात. फर्स्ट वन इज द शालो फाउंडेशन अँड द सेकंड वन इज द deep foundation. And which parameter are there, that is the based on the soil strata. If soil strata is hard up to a smaller depth, तर त्या ठिकाणी आपण वापरतो दॅट इज द शालो फाउंडेशन. डीप फाउंडेशन असेल तर स्टार्टर हार्ड स्टार्टा लागतच नाहीये आपल्याला, पूर्ण स्टार्टा इज अ व्हेरी स्मूथ स्टार्टा, देअर इज अ पाइल फाउंडेशन वी कॅन यूज. बघा, ब्लैक कॉटन सॉइल इज देयर, इफ ब्लैक कॉटन सॉइल रहती है हमारे साइट पर, तो क्या होता है, वो जो हम एक्सकेवेट करते हैं तो भी हमें हार्ड स्टार्टा नहीं मिलता. तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम उधर डीप फाउंडेशन दैट आर दी पाइल फाउंडेशन टाइप हम यूज करते हैं. आपने साइट पर देखा है क्या इस टाइप का फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन या तो राफ्ट फाउंडेशन, कैसा करते हैं? इसमें पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन देखा है क्या? नो मैम. नो मैम. ओके, वो फाउंडेशन तो कैसा No, करते हैं वो ma'am. देखा है क्या? यस मैम. यस मैम.
Yes, ये ma'am. फाउंडेशन मतलब क्या है, ये सॉइल के प्रॉपर्टीज पर रहता है। ये फाउंडेशन का, ये सॉइल इज अ वीक सॉइल। उधर सॉइल क्या है, वीक है, उसको लो बेयरिंग कैपेसिटी कम है, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी सॉइल की कम है। तो क्या होता है, ये जो हम वहाँ कितना भी क्या करें, डिगिंग करें, तो क्या होता है, उधर हमें हार्ड स्टार्टर नहीं मिलता। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन यूज करते हैं, पाइल फाउंडेशन उसको बोलते हैं। और हमें एक स्मॉलर डेप्थ पर उधर हमें क्या मिला, हार्ड स्टार्टर मिला। तो क्या होता है, एक स्मॉलर डेप्थ पर हार्ड स्टार्टर मिल गया, तो क्या होता है, उधर ही हम क्या करते हैं, थोड़ा उधर फाउंडेशन का उसका डेप्थ रहता है, वो फाउंडेशन का थोड़ा स्मॉल रहता है, और वो हमें हमारे बिल्डिंग के लिए भी अच्छा रहता है। ऐसा है, वो डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, दैट जियोटेक्निकल स्टडी इज रिलेटेड टू द सॉइल इंजीनियरिंग। ओके, एंड सॉइल इंजीनियरिंग का स्टडी है वो फाउंडेशन के रिलेटेड आता है, क्योंकि हमारी पूरी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग हमारी अर्थ पर रेस्ट है, बट अर्थ के बिलो क्या रहता है, हमारा फाउंडेशन रहता है। तो वो फाउंडेशन स्टडी है, वो अर्थ फाउंडेशन स्टडी है, वो सॉइल के रिलेटेड है। और सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल रिलेटेड स्टडी इज नथिंग बट अ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोलिक्स, वाटर रिसोर्स एंड द इरिगेशन इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक्स आता, हाइड्रोलिक्स मतलब क्या, इधर क्या आता है, देखो हाइड्रोलिक्स मतलब जो वाटर रिसोर्सेस कौन कौन से थे, सोर्सेस ऑफ वाटर कौन से आते हैं, उसमें से इरिगेशन सिस्टीम, इरिगेशन फ्रॉम वेल असेल तर त्या ठिकाणी विच टाईप ऑफ पंपिंग सिस्टीम वापरली जाते, त्या ठिकाणी पंप्स त्या ठिकाणी असतात. तर द स्टडी ऑफ दिस पंप्स दॅट विल बी कम अंडर दिस हायड्रॉलिक्स. Water resource is nothing but from where we have collecting the water, what are the water resources, and the irrigation engineering mean related to water, that study is come here, so that it is nothing but hydraulics, water resource and the irrigation engineering. Next point जो आता है इधर देखो, remote sensing and GIS, that already we have seen. Remote sensing means on the actual site आपको नहीं जाना है, उधर जाके उधर क्या करता है, सिर्फ remotely we have to take the aerial photographs, and through the aerial photographs we can do the survey, that is the remote sensing. And the GIS is the global geographical information system, that is also one of the modern technique. Through this we can do the survey, or we can collect the information of that site. Next is the structural engineering. तर बघा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग, व्हॉट इज द स्ट्रक्चर, द कनेक्शन्स ऑफ, आता आपले एनी स्ट्रक्चर असेल तर त्या स्ट्रक्चरच्या ठिकाणी बीम्स आहेत, कॉलम्स, फुटिंग्स, दॅट ऑल द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड अँड देन स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म. देन ऑन ईच अँड एव्हरी स्ट्रक्चर देअर विल बी अ सम लोड्स, लोड येणार आहे, तर त्या लोडचं कॅल्क्युलेशन्स, थ्रू द लोड कॅल्क्युलेशन, त्याचं अनालिसिस अँड हाऊ टू डिझाइन द बिल्डिंग, दैट ऑल पैरामीटर्स कम अंडर द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इनमें से हम क्या करते हैं, इसमें से जो लोड्स है उसका हम डिज़ाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं. उसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट टाइप की सॉफ्टवेयर्स भी है, वो सॉफ्टवेयर का यूज करके हम जो भी बिल्डिंग हमें क्या करनी है, बनानी है, उसका हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लान डेवलप करते हैं, प्लान से उसका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें से जो भी लोड आने वाले हैं बिल्डिंग के, वो पूरे लोड हम अप्लाई करके उसका एनालिसिस करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं. उसके लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी है, उसमें से हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, दैट्स कम अंडर द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सर्वेइंग. सर्वेइंग ये हमें हमें क्या करना है, एक रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उधर हमें क्या करना है, सर्वेइंग करना है फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द रोड्स. तो सर्वेइंग हम कैसे करते हैं, टू कैरी आउट द सर्वे थ्रू द डिफरेंट इक्विपमेंट्स आर देयर, एंड त्या इक्विपमेंटचा स्टडी इज इन्क्लूडेड इन टू द सर्वेइंग, सर्वेइंग डिसिप्लिन. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज नथिंग बट transportation engineering is nothing but three ways. First one is the airways, second one is the roadways, and third one is the waterways. And in detail study about these three types of the transportation is included into this transportation engineering. In this way, these are the disciplines of civil engineering. Now I will ask you one question: what are the building materials? What are the building materials? Column beams. What are the building materials? Steels, cement, Stone. Building Steel, cement, materials. wheat, cement, sand, Okay. beam, steel. Sand. Next.
What are the building materials? Wow. bricks, cement, steel, sand, rods, Okay. Cement, sand, aggregate, water, steel. Again, there are the other admixtures also we can use for the building materials. That are the building materials. That a whole study about the material. If timber is there, that timber study. Again, cement study. Again, concrete study. Again, there is a whatever the bricks are there. Again, there are the aggregates, fine aggregate or coarse aggregate. ये सबका जो स्टडी आता है, ये जो बिल्डिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, वो सभी बिल्डिंग मटेरियल का स्टडी इसमें से आता है. दैट इज द बिल्डिंग मटेरियल्स. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. दैट इज Yes, द ma'am. बिल्डिंग Ma'am. मटेरियल्स ma'am. फॉर द Yes, कंस्ट्रक्शन. ma'am. इसमें इसका स्टडी Yes, हम ma'am. बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं. सेकेंड पॉइंट, आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग. व्हाट इज दिस आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग? व्हाई वी हैव टू डू दिस आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग? बेसिक एम हमारा क्या रहता है? Direction of 4 bedrooms, kitchen, hall. आर्किटेक्चरल टाउन प्लानिंग मतलब हमें क्या करना है, हमारे टाउन को सुंदर बनाना है, Development. ऐसा ब्यूटी बनाना है. तो हमें क्या करना चाहिए? Design प्लानिंग देना करना चाहिए. कैसे प्लानिंग हम करेंगे? उधर बहुत सारे क्या रहते हैं प्लानिंग, बहुत हमारे टाउन में बहुत कंपार्टमेंट रहते हैं. उधर क्या है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, कहाँ तो कमर्शियल बिल्डिंग्स है, नहीं तो उधर क्या रहता है हॉस्पिटल्स रहते हैं, नहीं तो रेसिडेंशियल बंगलोज रहते हैं. तो सभी तरह के जो बिल्डिंग्स है उसका सभी रोड है, उधर ड्रेनेज लाइन है, वो जो सभी जो ये रहते हैं उधर के जो पार्ट्स है, तो सभी पार्ट्स का कमर्शियल पार्ट, अगेन बंगलोज टाइप ऑफ, दैट इज द रेसिडेंशियल, अगेन देयर आर द हॉस्पिटल्स बिल्डिंग है, और तो उधर रोड है, ड्रेनेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग है. तो वो सभी का क्या करना चाहिए, हमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हमारा जो टाउन है वो कैसे लगना चाहिए. हमें आर्किटेक्चरली हम जो प्लानिंग करते हैं उसमें उससे हमें हमारा टाउन क्या लगना चाहिए, ब्यूटी लगना चाहिए. दैट इज द प्लानिंग. जो हम क्या करते हैं, हम सेम प्लानिंग हम हमारे घर में भी बनाते हैं, जो जिसमें से क्या होगा, हमारा बिल्डिंग जो है वो क्या दिखना चाहिए, ब्यूटी लगना चाहिए. वैसा ही हम टाउन प्लानिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग. और जैसा हम बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं, हमारा घर हमें अब क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं घर का, तो हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं उसका पहले. वैसे ही टाउन का प्लानिंग करना, मतलब इसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग. समझ आया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. टाउन Yes, का प्लानिंग ma'am. करना मतलब दैट Ma'am. इज द आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग. थर्ड पॉइंट इज द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी. बघा आता कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, जब हम मैन्युअली वर्क कर रहे हैं, देखो हम मैन्युअली वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा उधर, तो क्या मैन्युअल वर्क कर रहे हैं तो क्या बहुत टाइम लगेगा हमें काम करने के लिए. तो क्या करना चाहिए, हमारा एफर्ट्स भी कम होने चाहिए और टाइम भी स्पीडी, वो जो काम कर रहे हैं वो भी स्पीडी होने चाहिए. तो उस टाइम हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं. एक एग्जांपल बताती हूँ. जो हम क्या करते हैं, अभी एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो पीपल्स है और बहुत सारे लोग हैं जो एक्सकेवेट कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. बट हम उधर जेसीबी यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो टाइम बहुत स्पीडी हो जाएगा ना. तो उसके लिए इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी. दैट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू डू द फास्ट वर्क. All of you understand this discipline, that is the construction technology. त्या ठिकाणी इफ इन Ma'am. एक्सकॅव्हेशन पर्पज असेल किंवा त्या ठिकाणी आपण जेव्हा कॉन्क्रीटचं मिक्सिंग करतो, तर हँड मिक्सिंग करत असताना जेव्हा त्यासाठी गौंडी mixer वगैरे वापरायचं. असतात, तर त्यांच्यासाठी जो जितका लागणार आहे वेळ, दॅट time required to mix all the ingredients, cement, sand, aggregate, water, that time is big as if we use the mixers. तर मिक्सर में हम जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से ये मिक्सर विदिन 1 minute, within 2-3 minutes all materials will be mixed with each other. That is also one advanced technique and that will be helpful to do the work fast. समझ आया क्या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज में क्या स्टडी करना है हमें? Yes, ma'am. Yes, Okay, जो ma'am. work हमें
फास्ट करना चाहिए. That is the construction, through the construction technology, that equipments will be come under this system, that is discipline, that is the construction techniques थ्रू द इक्विपमेंट. नेक्स्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्टडी किया क्या हमने, एनवायरमेंट रिलेटेड. एनवायरमेंट मतलब कार्बन, जो भी हम एयर पोल्यूशन है, अगेन देयर वाटर पोल्यूशन है, अगेन देयर आर दी नॉइज पोल्यूशन है, ये रिलेटेड टू क्या आता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आता है. जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हमने क्या स्टडी किया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ सॉइल. जो सॉइल कौन से टाइप की है उस पर हमें क्या करता है, हमारा पूरा फाउंडेशन रहता है. सॉइल जब वीक है तो क्या होगा, हमारा बिल्डिंग का जो भी लोड है वो बिल्डिंग का टोटल लोड है वो पूरा कहा जाता है सॉइल पर रहता है. लेकिन सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, कम है. सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कम है. तो कौन से टाइप का फाउंडेशन यूज करना है, इसके हिसाब से डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन है, शालो फाउंडेशन है और डीप फाउंडेशन है, उसमें से भी अलग पार्ट है. तो वो स्टडी हम क्या करेंगे, इसमें से करेंगे. दैट इज द जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, दैट इज नथिंग बट अ सॉइल इंजीनियरिंग, दैट इज द स्टडी ऑफ सॉइल. Again, coming towards the next discipline, that is the hydraulics and water resource engineering. Hydraulics, water resource engineering किंवा त्या ठिकाणी बघा एखादी स्प्रिंकलर सिस्टम असेल, शेतामध्ये तुम्ही बघितलं असेल इन युअर फार्म देर इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम इज प्रोव्हाइडेड. इफ देअर इज अ वॉटर रिसोर्स, जे काही पाईप्स वगैरे प्रोव्हाइड केलेले असतात त्या ठिकाणचे जॉईंट आहेत, त्या सगळ्याचा जो स्टडी आहे, किंवा वेल आहे, थ्रू द वेल आपण काय करतो त्या ठिकाणी, वेल थ्रू पंपिंग, थ्रू द पंपिंग वॉटर आपण त्या ठिकाणी मोटर सिस्टीम असते, थ्रू दिस आपण काय करतो आपल्या क्रॉपला वगैरे we have to provide the water through our crops. That system is come under this hydraulics, water resource and the irrigation engineering. Next one is the remote sink irrigation. Again त्या ठिकाणी तुमचे कॅनॉल्स, हाऊ टू प्रोव्हाइड द वॉटर थ्रू द कॅनॉल्स असेल, त्या ठिकाणी एखाद्या पॉईंट पासून ते दुसऱ्या पॉईंट पर्यंत आपण वॉटर कसं ट्रान्सपोर्ट करतो, दॅट थ्रू दॅट कम्स अंडर दिस इरिगेशन ऑल्सो. किंवा क्रॉपला आपण वॉटर कुठल्या पद्धतीने देतो, क्रॉप्स असेल, स्प्रिंकलर सिस्टीम असेल, दॅट ऑल अंडर कम अंडर दिस इरिगेशन engineering. Next one is the remote sensing and GIS. Remotely area on the actual site आपल्याला जायचं नाही आहे. Remotely we have to take a aerial photographs, and through this we will study that site, that nothing come under the remote sensing and the GIS. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मतलब क्या आता है, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल के डिफरेंट कंपोनेंट रहते हैं, तो कौन से कंपोनेंट पर कौन सा लोड आ रहा है, वो जो लोड से उसका एनालिसिस कैसे करने का और डिजाइन कैसे करने का. ये जो बिल्डिंग रहते हैं हमारे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या सिंपल बिल्डिंग है, तो सभी बिल्डिंग के बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग, उसका डिजाइन रहता है, और वो डिजाइन से हम स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. और उसमें से क्या है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट पर जो लोड आता है वो लोड हम क्या करते हैं, ये हमें सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. थ्रू दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो वी कैन मेक द एनालिसिस एंड द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स. नेक्स्ट आता है सर्वेइंग. तो सर्वेइंग का स्टडी है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. सर्वेइंग इज नथिंग बट टू carry out the survey on the road through the equipment. Which type of equipment, the equipment studies that is included into this, that is the theodolite, compass, survey, total station, how such instruments are useful for us for doing the survey, that study is here. And the last point is the transportation engineering. That transportation engineering is through the three ways. Which are these three ways, can you please? Transportation ways. Road, air, Air, and road. water. Please Road, air, fast. and water. By air, by water, by road. Air and Okay, through the air, By through the air. water, and through the highway. These are the waterways, and their information, whatever the transportation engineering related to these roadways, highways, and airways, that is included into this discipline as a civil engineering. That is the transportation engineering. In this way, these are the basics branches of the civil engineering, that are the disciplines of the civil engineering we have discussed in detail. Okay, now we will stop here. Within 2 minutes our meeting will be over.